Good morning, all of you. How are you? Fine? Okay. How was your yesterday? Nice? Okay. You enjoyed? Fine. So, today let's start our new chapter, our new science chapter, chapter number 11. All of you have got your textbooks. Open your textbooks, please. Have you all opened? Okay, one by one, I will take the name and that student will read. Only that student will read. Okay? All of you will not shout. I will call out the name and that student will read. Okay, Neha, first you start. Transportation in animals and plants. Okay, first let us know the topic. Today we are going to रीड अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट. आप लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन सुना होगा. लाइक यू मस्ट हैव हर्ड ट्रांसपोर्टेशन मीन्स व्हेन वी आर गोइंग बाय बस, वी आर गोइंग बाय ट्रेन. सो दीज ट्रेन्स एंड बस, व्हाट दे डू, they connect us from one place to another, right? If we want to go from here, let's say we want to go here from Jammu, or we want to go from here to Madras. So if you want to go there, you need some means of transport. बचपन में आपने पढ़ा ना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए. लाइक आइदर यू नीड अ बस, और यू नीड अ ट्रक, और यू नीड अ ट्रेन, और यू नीड अ प्लेन, राइट? उसमें बैठ के आइदर यू विल गो और योर थिंग्स विल गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट? सो टू कैरी something or to carry someone from one place to another, you need a means of transport. In our body also there are certain things which are carried from one place to another. Okay, now you know that आप सबको पता है कि हमें for living what the most important thing we need is oxygen, right? Okay, so oxygen from one place, oxygen is required in all the body parts. जब हम बोलते हैं कि हमें चाहिए मीन्स आवर बॉडी नीड्स, राइट? बॉडी में all the parts of our body needs oxygen. So that is what we are going to study today, that oxygen from outside, how do we get this oxygen, how it enters our body, and then how it goes to all the parts of the body, right? Neha, just continue beta. Okay, you have learnt earlier that all organisms need food, water and oxygen for survival. They need to transport all these to various parts of their body. Further, animals need to transport waste to parts from where they can be removed. Have you wondered how all this is achieved? Look at figure 11.1. They are talking about this figure. Okay, now have you wondered, do you see the heart and the blood vessels? They function to transport substance and together form the circulatory systems. So the lines you can see, the blue lines and the red lines and lines sort of thing in this picture, they are the blood vessels. Blood vessels are like trains or buses in our body who carries oxygen and carbon dioxide from one part of the body to another part of the body. Okay, they function to transport substance. I told you in this chapter you should learn about transport of substances in animals and plants. So in animals and plants, how these substances move from one part of the body to the another, we are going to read this. This is called circulatory system. The name of this system is circulatory system. First of all, why it is called a system? Because to function, when our body functions something, okay, like if we are seeing something, the first organ which we use is eye. But eye is not only the organ which is enabling us to see. Okay, आँख से हम सिर्फ चीज़ों को देखते हैं. आँखों के पीछे जो है कई नसें होती हैं, वो नस उनके साथ कनेक्ट होती है. तो आँख क्या करता है, फटाक से कुछ देखता है, इट सीज एंड इट गिव्स द इन्फॉर्मेशन टू द दोज नर्व्स, एंड वो नर्व्स क्या करती हैं, वो इन्फॉर्मेशन देती है आपके ब्रेन को. ओके, एंड दैट ब्रेन
अगेन वो मैसेज भेजता है कि हाँ हमने देखा और आपने जो देखा वो ये है. सो वी देन अज्यूम दैट ओके व्हाट वी आर सीइंग इज़ दिस. तो ये सारी चीज़ें उसमें जो है इन्वॉल्व होती है. ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन्स हो गए ना, ब्रेन हो गया, नर्व्स हो गया, आइज़ हो गया, तो ये पूरा सेंसरी सिस्टम सेंसरी ऑर्गन्स में आ जाता है. ठीक है, इसी तरह से जब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलके एक पर्टिकुलर काम करते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ सिस्टम. Now we are talking about, we are studying about circulatory system. Circulatory system is when we are talking about blood and all the components of blood and heart. These are the parts: heart, blood vessels, and parts of blood. All these are the components of circulatory system. We will be reading about this. Okay. फर्स्ट पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ब्लड. ब्लड वो चीज़ है जो इन सब चीज़ों, हमारे बॉडी में जितनी भी चीज़ें हैं, वॉट एवर इज़ रिक्वायर इन आवर बॉडी, दे कैरी दैट. ओके, जो रोड्स होते हैं, अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो जो रोड्स होते हैं, वो रोड्स जो है, मान लो वो रोड्स जो हैं, दोज रोड्स आर द ब्लड वेसल्स. ठीक है, लेकिन उस पर चलता कौन है? उस पर चलते हैं बसेस, ट्रेन्स, प्लेन्स. ठीक है, तो वो जो, हम तो उसी में बैठेंगे ना. अगर हमको कहीं जाना है, इफ़ यू वांट टू गो समवेयर, यू हैव टू सिट इन दैट. सो इन द सेम वे हमारी बॉडी में जो भी ज़रूरी मिनरल्स हैं, वॉट एवर न्यूट्रिशन और वॉट एवर ऑक्सीजन द बॉडी वॉन्ट्स टू कैरी. ओके, नॉट ओनली ऑक्सीजन, इवन कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो, जो भी चीज़ वो कैरी करना चाहती है, उसको एक जगह से, एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट में लेके जाना चाहती है, दैट हैज़ टू सिट ऑन द ब्लड. ओके, सो ब्लड इज़, यू कैन से इट्स जस्ट लाइक द बस और ट्रक which is moving on the roads. So in the circulatory system you can assume road as blood vessels. ये blood vessels जितनी भी लाइन आपको दिख रही है ना, ये जो पाइप्स जैसी दिख रही हैं, ब्लू एंड रेड कलर की, these are pipes sort of structures. ओके, जो हार्ट से शुरू होके पूरे बॉडी पार्ट में जाती भी हैं और वहाँ से वापस भी आती है. और उसके अंदर कौन उसके अंदर क्या होता है? व्हाट इज़ इनसाइड दैट इज़ ब्लड. सो ओके अनुराग, यू रीड आउट नाउ. सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड. what happens when you get a cut on your body? Blood flows out. But what is blood? Blood is the fluid which flows in blood vessels. It transports substances like digested food from the small intestine to the other parts of the body. It carries oxygen from the lungs to the cells of the body. It also transports waste for removal from the body. How does the blood carry various substances? Blood is composed of a fluid called plasma, in which different types of cells are suspended. Okay, wait. So blood, as it is said कि blood क्या है? Blood एक fluid है which is flowing inside the blood vessels. Okay, what it does? It transports substances like, उसमें वो क्या क्या लेके जाता है? लाइक जो, जैसे आपने देखा होगा जो मालगाड़ियाँ वगैरह होती हैं, उसमें क्या है, सामान लेके जाया जाता है. जो पैसेंजर्स ट्रेन होती है वो क्या लेके जाती है? वो हम लोगों को लेके जाती, पैसेंजर्स को लेके जाती है. ठीक है ना. इस तरह से ब्लड जो है, ब्लड भी कई चीज़ों को कैरी करता है अपने साथ, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अनदर पार्ट. क्या क्या कैरी करता है? व्हाट डज इट कैरीज? इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स. जो भी लंग्स, वी नीड ऑक्सीजन टू लिव, राइट. एंड ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कहाँ से घुसता है? इट एंटर्स फ्रॉम द नोज एंड द माउथ टू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. लंग्स के अंदर जाता है ना, लंग्स में ही ऑक्सीजन आता है. और लंग्स ही वो ऑर्गन है जहाँ पर, लंग्स इज द ऑर्गन वेयर द ऑक्सीजन एंटर, वेयर द ब्लड वेसल्स टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड. ओके, आपको ब्लड में अगर ऑक्सीजन लेना है तो वो लंग्स से मिलेगा. ठीक है ना. सो वहाँ से ऑक्सीजन लेके व्हाट इट डज, इट गोज़ टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इट गिव्स देयर. एंड वहाँ से जब वो वापस आएगा, व्हेन इट कम्स बैक, नॉट फ्रॉम द सेम, you can see the blue lines and the red lines, they are called vessels. So these vessels, the red vessels,
are called arteries. You will be reading about that. The red vessels, they carry this oxygen, oxygen rich blood from the lungs to different parts of the body. While coming back, they don't come back from the same arteries. वो जाती ब्लू वाले से हैं और वापस आते हैं रेड वाले से. एंड वाइल कमिंग बैक दे कैरी द डीऑक्सीजनेटेड, मीन्स जो ऑक्सीजन तो आपके बॉडी ने रख लिया अपने पास, अब वो वापस क्या देगा, वो वापस देगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड. तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी कैसे देगा, इट विल लीव द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड. ओके, सो द ब्लड फ्रॉम दीज blue blood vessels, they carry the deoxygenated blood back to the heart. Okay, so this is how आपका जो है blood इस तरह से काम करता है. I will be describing you in detail कि कैसे how does it work, ये कैसे जाता है पूरे different parts of the body में और कैसे वापस आता है. Okay, now blood is composed of a substance called कंपोज ऑफ अ फ्लूइड. ब्लड जो है वो पानी जैसी चीज़ होती है, ठीक है, फ्लूइड जैसा बना होता है. उस फ्लूइड का नाम होता है प्लाज्मा. जब आपका हाथ कहीं से कट जाता है या कुछ कट जाता है, उसमें पानी जैसा निकलता है ना ब्लड, रेड कलर का, एक तो रेड कलर का होता है एंड इट इज़ लिक्विड फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, नो, सो दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड प्लाज्मा. एट द सेम, प्लाज्मा कंटेन्स सो मेनी सेल्स. ओके, प्लाज्मा में कई तरह के सेल्स होते हैं. If someone asks you what is plasma made of, plasma is made up of different types of cells. You will be studying about that. Okay, now move on to the next page and Ravi, you read out. One type of cells are the red blood cells, RBC, which contains a red pigment called hemoglobin. Okay, wait, so red, as I told you कि red ब्लड में प्लाज्मा होता है एंड इनसाइड दैट प्लाज्मा कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. वन, उसमें से एक टाइप ऑफ सेल होता है रेड ब्लड सेल. रेड ब्लड सेल जो है वो एज द नेम सजेस्ट, रेड, आपका जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है ना, तो वो रेड कलर क्यों होता है, इन्हीं सेल्स की वजह से वो रेड दिखता है. एंड दीज आर द रेड ब्लड सेल्स विच कैरीज, उस पर कौन बैठा होता है, उस पर बैठा होता है रेड पिगमेंट्स कॉल्ड हीमोग्लोबिन. ओके, एक पिगमेंट होता है. अब आप बोलोगे मैम व्हाट इज़ पिगमेंट. पिगमेंट, आपने पहले भी पिगमेंट पढ़ा हुआ है. वाइल आपने पढ़ा है कि हैव यू ऑल रेड अबाउट क्लोरोफिल. लास्ट ईयर यू मस्ट हैव, नॉट लास्ट ईयर, सेकेंड या थर्ड क्लास से आप लोग पढ़ना शुरू कर रहे हो कि लीव्स आर ग्रीन बिकॉज ऑफ द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, राइट. तो क्लोरोफिल वो पिगमेंट है. पिगमेंट एक केमिकल सब्सटेंस होती है, एक चीज़ होती है जो कि आपकी किसी भी सब्सटेंस में होती है जो किसी चीज़ को कलर देती है. जैसे कि पत्तों में जो है क्लोरोफिल होता है, इसकी वजह से वो ग्रीन लगते हैं. इन द सेम वे हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो कि उसमें हीमोग्लोबिन होता है एंड हीमोग्लोबिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द ब्लड. And also hemoglobin is the pigment which carries oxygen. यही वो पिगमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है, उसके साथ इसकी बहुत दोस्ती है, ये दोस्ती उसी के साथ करता है. सो ये दोनों दोस्त बन जाते हैं. ये ऑक्सीजन लंग्स में जैसे ही जाता है, ये इट सेज कि हाँ ऑक्सीजन यू आर माई फ्रेंड, तो ये ऑक्सीजन को अपने साथ ले लेता है एंड इट कैरीज टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और वहाँ पर जाके हर जगह, वेर एवर इन द होल पार्ट, it goes and gives oxygen to each and every part of the body. Okay, it will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body without hemoglobin. अगर hemoglobin कम है या नहीं है, so it's very difficult कि आपकी बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजन मिले. That's why you know sometime आप बहुत ज़्यादा खेल के आते हैं या बहुत ज़्यादा दौड़ के आते हैं ना, तो आपके हाथ पाँव एकदम सुन्न जैसे लगते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में कम पहुंच रहा होता है. और दूसरी बात, और हीमोग्लोबिन जो है इट शुड बी एडिक्वेट इन योर बॉडी, ओके, फॉर द ऑक्सीजन पर्पस.
The presence of hemoglobin makes blood appear red, as I have already told you. The blood also has white blood cells, WBC, which fight against germs that may enter our body. Okay, the second type of cells क्या होता है इसमें? Second type of cells होता है white blood cells, WBC. white blood cell क्या करता है? What does it do? It fight against कोई भी हमारे शरीर में अगर बीमारी बाहर से आने की कोशिश करे, so when it tries to come inside our body will react first with the help of these white blood cells. ओके, ये वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो फाइटर सेल्स होते हैं, ये उनसे लड़ने की कोशिश ट्राई करते हैं. नाउ भोजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नी गॉट इंजर्ड. Blood was coming out from the cut. After some time, he noticed that bleeding had stopped and a dark red clot had plugged the cut. Bhojo was puzzled about this. The clot is formed because आप देखा आपने कई बार जब हम गिर जाते हैं खून निकलता है तो अचानक खून थोड़ी देर के बाद खून बंद हो जाता है. वाई? फिर एक थोड़ा सा सॉलिड जैसा चीज़ उसके ऊपर बन जाता है, क्लॉट टाइप का, नहीं. सो दिस क्लॉट, ये जो क्लॉट है ये बनता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द तीसरा एक सेल टाइप है, द थर्ड सेल टाइप विच इज कॉल्ड प्लेटलेट्स. ओके, सो व्हाट वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ सेल इन ब्लड? दैट इज योर रेड ब्लड सेल्स. फाइन. द सेकेंड टाइप इज वाइट ब्लड सेल्स एंड द थर्ड टाइप इज प्लेटलेट्स. ये तीन तरह के सेल्स जो होते हैं, इट इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड. फाइन. नेक्स्ट इज ब्लड वेसल्स. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ब्लड जो है वो तो कार है, ट्रक है, वो गाड़ियाँ हैं जिस पे बैठ के जो है आपका जो भी सामान इधर उधर जाएगा, बट ये चलेंगी किन पे? ये चलेंगी रोड्स पे. सो इनसाइड द बॉडी हमारे जो ब्लड है वो मूव किस पे करेगा? ब्लड वेसल्स पे करेगा. ओके, सो ब्लड वेसल्स पे मूव करने के लिए कैन यू सी यहाँ पर जो दिखाया गया ये सारा, दीज आर ब्लड वेसल्स. ओके. Okay, now Anshuman, you read. There are different types of blood vessels in the body. You know that during inhalation of fresh oxygen supply of oxygen fills the lungs. Oxygen has to be transported to the rest of the body. Also, the body picks up the waste materials including carbon dioxide from the cells. This blood has to go back to the heart for transport to the lungs for removal of carbon dioxide, as you have learnt in chapter 10. So two types of blood vessels, arteries and veins, are present in the body. Okay, so I have already told you that blood में अगर हम बॉडी के अंदर अगर ब्लड को लेके जाना है तो इट कैरीज ऑक्सीजन. हमें ऑक्सीजन चाहिए, वी वांट द ऑक्सीजन, राइट. सो जो ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन हमारे इट कैरीज ऑक्सीजन, okay, from the lung to different parts of the body, they are called arteries. But the blood vessels which brings back the deoxygenated means ऐसा ब्लड जिसमें से ऑक्सीजन निकाल लिया गया है एंड उसके बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वापस दे दिया गया, सो दैट ब्लड विल कम बैक फ्रॉम वेन्स. ओके, सो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड from the heart to all other parts of the body. So what are the specialties of arteries? Arteries carry oxygen rich blood. Which type of blood it carries? Oxygen rich blood, and it carries from the heart to all the other body parts. Okay, now since the blood flow is rapid and high pressure, the arteries have thick elastic walls. द ब्लड फ्लोज, उसमें से जो ब्लड है वो बहुत तेज़ी से बहता है इसलिए, और उसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है. दैट इज़ वाई द जो आर्टरीज़ की वॉल्स होती हैं वो बहुत ही इलास्टिक और थिक होती हैं और इलास्टिक होती है. इलास्टिक मीन्स जब आप बैलून में पानी को भरते हो, हवा तो भरते ही हो, जब पानी को भरते हो बैलून में तो वो बैलून जो है आप जितना पानी पहले तो छोटा सा दिखता है, बिल्कुल छोटा सा दिखता है, फिर आप जितना पानी भरते जाओगे वो बड़ा होता जाएगा, है ना. तो ये जो प्रॉपर्टी होती है किसी चीज़ की कि वो पहले छोटा रहेगा लेकिन अगर आप चाहोगे तो वो बड़ा भी हो जाएगा, तो इसको इलास्टिसिटी बोलते हैं. तो द सेम वे आपका जो ब्लड वेसल्स है दे आर ऑल्सो
इलास्टिक इन नेचर, ओके, तो वो एक्सपेंड हो सकती है और वो फिर वापस अपनी जगह पे वापस भी आ सकती है. फाइन. ओके, so for today I think this much is fine. If anybody is having any problem or any doubt, please let me know. You can ask me one by one. You can ask me if you have any question. Please ask me. Okay, if everything is clear, so just read out, just read the next paragraph for tomorrow. We will be discussing the next part. Okay. Okay, have a nice day. Take care till then. Okay, bye bye.